Welcome to Mending Walls by Robert Frost, Part 4. कविता मेंडिंग वॉल, जिसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, के इस चौथे भाग में आपका स्वागत है. In the fourth part, we shall see lines 30 to 46. चौथे भाग में हम लाइन 30 से 46 तक देखेंगे. फर्स्ट, let us see the original lines 30 to 35. पहले हम मूल पंक्तियां 30 से 35 तक देखते हैं. Why do they make good neighbors? Isn't it? Were there cows? But here there are no cows. Before I built a wall, I'd ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Having seen the original lines 30 to 35, let's see the explanation of these lines. इन पंक्तियों का explanation देखते हैं. The poet asks his neighbor why good fences make good neighbors. In the previous explanation, which was discussed in video 3 on mending wall, the neighbor, he says that good fences make good neighbors. So here the poet asks why good fences make good neighbors. हमने तीसरे वीडियो में ये चर्चा में ये सुना था कि पड़ोसी ये कहता है कि अच्छे पड़ोसी होने के लिए अच्छी दीवारें या अच्छी बीच में एक विभाजन होना आवश्यक है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों. Fences often sprout some greenery on them and they attract cows. Otherwise too, fences are erected to keep away cows. Now, fences are made for two contradictory reasons. One thing is that when the greenery grows somewhere on the fence or around the fence, it attracts cows. Fences जो होती हैं, इनका एक दोहरा स्वरूप सामने आता है. यदि इनके ऊपर हरी घास या हरी कोई वेजिटेशन उग जाती है तो गाय आकर्षित होती हैं. तो कभी कभी तो गाय को आकर्षित करने का कार्य भी फेंस करती हैं. Otherwise too, fences are erected to keep away cows, and sometimes the fences are erected to keep cows away. और कभी कभी ये फेंस या ये बाड़ाबंदी इसलिए की जाती है कि गाय को दूर रखना है. But there are no cows where the wall between their farms has broken down. He says that if it is the matter of the cows, whether to attract them or keep them away, walling in or walling out, the thing is that here there are no cows at all. So does this make any sense that where there are no cows we can neither wall them in or wall them out? कवि कहते हैं कि हम इसको सत्य मान लें कि गाय को या तो आकर्षित करने के लिए या दूर रखने के लिए हम बाड़ाबंदी करते हैं. यहां तो गाय ही नहीं है. क्या अब यहां पर फेंस बनाना उचित होगा? But there are no cows where the wall between their farms has broken down. In fact, the poet would like to know what he is keeping out and what he is protecting by building the wall, and also who might not take kindly to the idea of the wall being put up. He says, the poet says that
there should be clarity of concept. If we are attracting something, then what? Because cows are not here. If we are repelling something or keeping something away, then what? Because there are no cows. कवि कहते हैं हम किसी चीज को अगर आकर्षित करने के लिए फेंस बना रहे हैं तो वो क्या है, क्योंकि गाय तो है नहीं. और अगर हम किसी चीज को दूर भगाने के लिए या उससे बचाव करने के लिए या रक्षा करने के लिए बाड़ाबंदी कर रहे हैं तो वो क्या है, यहाँ गाय तो है नहीं. And also, who might not take kindly to the idea of the wall being put up? And also, the wall is being put up. Then, who reacts how? Or does it attract anybody or does it please anybody? Is there something behind it? There needs to be some logic. There needs to be some strong reason behind this. वो कहते हैं इसके पीछे कोई तो कारण होना चाहिए ना, जिसके लिए हम कहें कि हमारे लिए ये फेंस बनाना बहुत आवश्यक है. मुझे यहाँ पर कोई भी तर्क नहीं दिखाई देता है, कोई उपयुक्त कारण नहीं दिखाई देता है. लेट अस सी लाइन्स 36 to 41. आइए अब मूल पंक्तियां देखते हैं 36 से 41 तक. समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, दैट्स वॉन्ट्स इट डाउन. आई कुड से एल्व्स टू हिम, बट it's not elves exactly, and I'd rather he said it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top in each hand, like an old stone savage armed. Frost is playful like a child. He again speculates on in a light vein, toys with the idea or imagination that the wall could have been pulled down by elves, pixies, or goblins, which are tiny, imaginary, fictitious creatures in children's stories. It is very interesting that a topic which is so intense and profound is being handled so beautifully in a lively and colorful vein by Robert Frost. एक ऐसा भाव जो गहन है उसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतने उमंग भरे, इतने बहुरंगी आयामों से हैंडल कर रहे हैं. ये उनकी काव्य शैली यहाँ बहुत निखरती है जब हम ये देखते हैं कि वो एक गहन विषय पर इतना छोटे बच्चों वाली उमंग या छोटे बच्चों वाली चहक पैदा कर रहे हैं. He again speculates or in a light vein toys with the idea or imagination. Now again he is toying with the idea and imagination which is like a child's imagination. जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाओं की दुनिया होती है, बहुत रंग बिरंगी अच्छी दुनिया होती है, वैसी ही दुनिया यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी है. He toys with the idea the wall could have been pulled down by elves, pixies, or goblins, which are tiny, imaginary, fictitious creatures in children's stories. He says, okay, if my neighbor asks that who could have pulled these boulders down, I'll tell him that elves came, or pixies came, or goblins came. And these elves, pixies, goblins, they are small creatures, imaginary creatures in children's stories. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं आपकी बार मेरा पड़ोसी पूछेगा कि ये दीवार कैसे गिरी, तो मैं उसको बता देने वाला हूं कि एल्व्स, पिक्सीज या गॉब्लिन्स जैसे छोटे छोटे क्रीचर्स जो हमारी बचपन की कहानियों में दिखाए जाते हैं, जो बिल्कुल काल्पनिक होते हैं, उनमें कोई सच नहीं होता है, वही काल्पनिक पात्र आए थे और आकर के दीवार गिरा गए थे. But he doesn't want to tell his serious neighbor about his childlike fancy. But the neighbor is very serious and sullen and not at all humorous. So Robert Frost doesn't feel like sharing this fun with the neighbor. पड़ोसी बिल्कुल उमंग रहित है, उसमें कोई चुलबुलापन नहीं है, उसमें बचपन वाली उमंग नहीं है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है इतनी प्यारी सी बात और एक उमंग वाली बात एक उमंगहीन व्यक्ति को बताना भी उपयुक्त नहीं होगा.
he hopes that instead the neighbor would come to the same conclusion by himself. Now he says that he prays to God that let the neighbor himself come to this conclusion, that someone has come from an unknown world, some unknown thing has come from some unknown world and done this thing. वो कहते हैं कि काश मेरे पड़ोसी को ही ऐसा लगे कि किसी अनजानी जगह से कोई अनजानी वस्तु या अनजाना जीव आया है और ये काम करके चला गया है. But far from the liveliness in the heart of Frost, the neighbor works on rebuilding the wall on a serious note. But on one hand, Robert Frost is being so playful, so childlike, so happy with the idea of goblins, pixies, elves, imaginary creatures. And on the other hand, he sees that the neighbor is busy in rebuilding the wall on a serious note. जहां एक ओर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक छोटे बच्चे की तरह कल्पनाओं की दुनिया में खोए हुए हैं और खुश हो रहे हैं, वहीं पड़ोसी बहुत गंभीर मुद्रा में उस दीवार के छेदों को बंद करके उसको रिपेयर करने में लगा हुआ है. His body language is like that of a savage. और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है पड़ोसी फार्मर की, वो बिल्कुल सैवेज की तरह है, बिल्कुल अनसोफिस्टिकेटेड जंगली व्यक्ति की तरह है. The poet feels that he resembles an uncouth and uncivilized inhabitant of the Stone Age, whose weapons are those very rocks which make up the wall. The poet feels that he resembles an uncouth and uncivilized inhabitant. जब उसको देखते हैं कि बहुत गंभीर मुद्रा में बड़े बड़े पत्थर उठा करके, दो हाथों में 2 पत्थर उठा करके ला रहा है, थक रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन पत्थर उठाए बिना नहीं मानेगा. पत्थर उठा करके ला रहा है और छेदों को बंद करने का प्रयास कर रहा है. तो वो उसको लगता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपने पड़ोसी को देख करके कि ये कितना अनकाउथ और अनसिविलाइज्ड इनहैबिटेंट है, ये कितना अनपॉलिश्ड है, ये कितना असभ्य दिखाई दे रहा है ऐसे हरकत करते हुए inhabitant of the Stone Age, and he is looking like some creature come out of the history books. उसे ऐसा लगता है जैसे इतिहास के पन्नों में से निकल के ये व्यक्ति आ गया है, जैसे कोई पाषाण युग का व्यक्ति दिखाई देता है ना, बहुत ही रफ, बहुत ही भीम का है, बहुत ही इनसेंसिटिव, संवेदनाहीन, इस तरह से पाषाण युग का सा आया हुआ जीव दिखाई देता है. Whose weapons are those very rocks which make up the wall, and this man is coming with weapon in hand, and the weapon is the stone which he is carrying. जैसे पाषाण युगीन व्यक्ति हाथ में पत्थर रूपी अस्त्र लेकर के अपना युद्ध लड़ने के लिए आ रहा हो, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, इस व्यक्ति को और इसकी भाव भंगिमा को देख करके महसूस होता है. Robert Frost and his neighbor are poles apart in temperament. As far as the temperament goes, as far as the feeling and behavior goes, these two are poles apart. जहां तक स्वभाव की बात है, व्यवहार की बात है, रुझान की बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनके पड़ोसी ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशाओं के व्यक्ति हैं. एक उत्तर है, दूसरा दक्षिण है, बिल्कुल मेल नहीं है दोनों के बीच में. लेट अस सी द ओरिजिनल लाइन्स 42 to 46. मूल पंक्तियां 42 से 46 तक देखते हैं. He moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father saying, and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. मूल पंक्तियां 42 से 46 तक देखी हैं हमने. Let's see the explanation of these lines. In these lines, the poet suggests that this neighbor has some kind of association with darkness or negativity. यहां पर एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सामने आई है. He feels that this person, my neighbor, who is so grim and sullen,
unable to smile, unable to laugh. He lives in a world of darkness. He lives in a world of negativity. उन्हें लगता है कि इतना गंभीर, अति गंभीर व्यक्ति, ये कैसा व्यक्ति है जिसे मुस्कुराने में भी परेशानी हो रही है, जो हंसता भी नहीं है, जिसे किसी चीज में उमंग तरंग कुछ दिखाई ही नहीं देती है। ये एक अंधेरे की दुनिया में जीता है, ये एक नकारात्मक दुनिया में जीता है। This is not the physical or geographical darkness that is caused by the shade of trees. And this darkness is not the geographical darkness or the climatic darkness which we find in the physical world. ये वो अंधकार नहीं है जो हमें भौतिक जगत में दिखाई देता है या भौगोलिक जगत में दिखाई देता है, जिसमें हमें जो फिजिकल अंधेरा है वो महसूस होता है। वो कहता है कि जो भौतिक अंधेरा है, जो शेड ऑफ ट्रीज से नजर आता है, पेड़ों की परछाई जैसा अंधेरा हो, ये वो उस अंधेरे की दुनिया में नहीं रहता है। द शेड ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, there is an intense darkness in his mind as well. So he says the shade of trees in the dark forest, dense forest, it is not that darkness. There is an intense darkness in his mind as well. He says not only is he living in a physical darkness, he is living in a state of darkness which is surrounding or gripping his mind. जो अंधेरा है वो अंधेरा भौगोलिक या वातावरण जनित अंधेरा नहीं है। ये उस अंधेरे से जकड़ा हुआ है जिसने इसके मन और मस्तिष्क को, इसकी सोच को, इसकी कल्पना को जकड़ रखा है। इसलिए इसकी हर चीज अंधकारमय हो गई है। इसके अंदर नकारात्मकता इतनी अधिक आ गई है कि ये उस तरह का हो गया है कि इसको कोई भी चीज अच्छी दिखती ही नहीं है। तो वो जो डार्कनेस ऑफ माइंड है, दैट साइकोलॉजिकल और द डार्कनेस ऑफ द साइकी, दैट थिंग इज स्ट्रांगली प्रोनाउंस्ड इन दिस मैन, हिज बिहेवियर एंड इन हिज डिसीजंस एज वेल। तो यहां पर इसकी बुद्धि, इसका भाव, इसकी कल्पना, इसकी विवेक शक्ति, सब कुछ उस अंधकार की जकड़ में है और ये उस अंधकार की दुनिया से बाहर आ ही नहीं पाता है। It seems that he was preoccupied with certain thoughts taught in childhood, and the poet says that probably something of this type was taught to him in his childhood and he has not come out of that. कवि कहते हैं हो सकता है बचपन में हम बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाते हैं और कौन सी बात को बच्चा पकड़ के बैठ जाए या उसकी सोच में, उसकी साइकी में, उसके मानस में कौन सी चीज अंकित हो जाए, ये हमें पता नहीं होता है। संभावना दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति के मानस को भी बचपन की बताई हुई किसी बात ने जकड़ रखा है। He cannot disagree with his father in saying that good fences account for peace among neighbors. He says he cannot disagree with his father. This person is absolutely in agreement with what his father had taught him. इसे वही सत्य लगता है जो इसके पिता ने इसको सिखाया था। और क्या सिखाया था? Good fences account for peace among neighbors. That good fences, they always bring peace among neighbors. कि अच्छे पड़ोसियों के बीच में यदि अच्छी फेंस होती है, अच्छी दीवार होती है, अच्छी बाड़ेबंदी होती है, अच्छी विभक्ति होती है, तो पड़ोसी आपस में बहुत खुश रहते हैं। वो अच्छे पड़ोसी वाले तर्ज पे अपने संबंधों को बना करके चलते हैं। So he emphasizes that good fences make good neighbors, and that is the reason why he again and again and again emphasizes in the poem that good fences make good neighbors. यही कारण है कि वो बहुत दबाव दे करके इस बात को कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ये ओरिजिनल वर्ड्स हैं, लाइन कविता की मूल पंक्ति है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। लेट अस सी द एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू दिस पार्ट ऑफ द पोएम। अब कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स देखते हैं। Elves, a small fictitious creature with pointed ears,
हु हैज मैजिक पावर्स। कहानियों में नुकीले कानों और जादुई शक्तियों वाला एक छोटा प्राणी, क्योंकि ये काल्पनिक होता है तो इसकी कैसे भी कान ना कान, नुकीला, तीखा, तिरछा कैसे भी बना दिया जाता है। तो इस तरह से बाल कथाओं में जो काल्पनिक पात्र बना दिए जाते हैं विचित्र से, जो यथार्थ से बहुत अलग होते हैं, और इनका यथार्थ से मेल खाना आवश्यक होता भी नहीं है क्योंकि बच्चों को विचित्र चीजें ही पसंद आती हैं। तो इस तरह के कुछ पात्र बच्चों की कथाओं में बनाए गए हैं और वो बहुत सक्सेसफुली दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर उन्हीं का सहारा कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिया है। सैवेज, वेरी क्रूअल और वायलेंट पर्सन, अति निर्दय, हिंसक या बर्बर। ही मूव्स इन डार्कनेस। ही इज मोटिवेटेड बाय नेगेटिव थॉट्स एंड डाउट्स। वह अंधकारमय और नकारात्मक भावों और विचारों से प्रेरित है, अतः सकारात्मक तथ्यों और संभावनाओं के प्रति अरुचि रखता है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम मेंडिंग वॉल। यहां पर कविता मेंडिंग वॉल समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।